Sir, what is nature? How it works? Are we able to understand this phenomenon with this mind? Jazakallah. آپ اسے جی رہے ہو نا، اور کیا سمجھ رہے ہیں آپ یہ کہ آپ اسے زیادہ جان کر کسی اور طریقے سے جینا تو شروع نہیں کرو گے نا. موسٹ آف دا ٹائم ہم ایسے پرسیو کرتے ہیں نا کہ چیزوں کو سمجھ کے ہم اسے بہتر طریقے سے یوز کر سکتے ہیں. ایک میتھ کا کوئی فارمولا ہو، چاہے وہ عام زندگی میں عام بندہ اپلائی بھی کر رہا ہو. ہم نے پڑھے وہ الجبرا میں شروع کی کلاسوں میں a+b² = a² + b² + 2ab. ہو سکتا ہے یہ زندگی میں ہم عام اپلائی کرتے ہوں، اور ہو سکتا ہے ایک میتھمیٹیشین سے اپلائی کر رہا ہو یہ جانتے ہوئے کہ یہ کلیہ اپلائی ہو رہا ہے. کیا فرق پڑتا ہے دونوں کے اس میں؟ جینے کی سطح پر تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا خاص، مگر سمجھنے سے مراد یہ بھی ہو جس طرح سے ہم نے انسان جنگلوں میں رہتا تھا، اس نے اناج کو سمجھا ہاں تو کیسے پھر کام آپ کرتا ہے، ریسرچر بنو نا، سبزیاں اگائی. ریسرچر بنو. سیکر کے لیے ضرورت نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ریسرچر نہیں ہونے چاہیے، تو بہت سارے لوگ ہیں نا ہاں اسپرچویلٹی پہ بات کرتے ہیں. اسپرچویلٹی اب نہ سمجھنے کا نہ سمجھانے کا. ریسرچر میں اور سیکر میں کیا ڈفرنس ہے؟ سیکر کا تعلق جو ہوتا ہے وہ زندگی سے ہوتا ہے، ریسرچر کا تعلق انفارمیشن سے ہوتا ہے. کتنی ایگزیکٹ انفارمیشن وہ لا رہا ہے، اس فینومینا کو کتنا لاجیکلی ایکسپلین کر پا رہا ہے، اس کی جو دلیل ہے اس میں کتنا وزن ہے، کتنا لاجیکل سیکوینس ہے اس پورے مفروضے میں جو وہ بیان کر رہا ہے، ایکسپلین کر رہا ہے. جیسے کسی بھی سبجیکٹ کا جو ریسرچر ہے وہ کرتا ہے. سیکر لاجیکل نہیں ہوتا؟ سیکر لاجیکل نہیں ہوتا، لائف لاجیکل نہیں ہے. نظر تو لاجیکل آتی ہے ویسے. اس کی وجہ یہ ہے نظر نہیں آتی، آپ اس اینگل سے دیکھتے ہو اس لیے نظر آتی ہے. وہ آپ کے پاس انسٹرومنٹ ہے اسے دیکھنے کا، وہ 2 + 2 4 کرنا جانتا ہے. نہ 2 ڈیفائن ہے، نہ دوسرا 2 ڈیفائن ہے، نہ 4 ڈیفائن ہے. ایک مفروضہ لفظ ہے 0، ایک مفروضہ ہے 1، ایک مفروضہ ہے 2، اور اس طریقے سے آپ نے مفروضہ کریٹ کیا ہے نا. نہیں، اگر دوسری سینس میں بھی دیکھا جائے، جیسے زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، گلیکسی کسی اور چیز سے گرد گھوم رہی ہے، ایک بیج سے درخت بنتا ہے، چیزیں ایک ترتیب میں، ایک آرڈر میں، ایک لاجیکل سینس میں کیوں پرسیو یہ ہوتی ہیں. ترتیب ہے؟ یہ بھی ترتیب ہوتی تو آپ مان ہی لیتے، اور صدیوں تک آپ مانتے ہی رہے ہیں کہ سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے. فینومینا تو ایک ہی واقع ہو رہا ہے نا. آپ کئی ہزار سال تک یہ مانتے رہے کہ زمین جو ہے اس کائنات کا مرکز ہے اور سب کچھ اس کے گرد گھوم رہا ہے. سورج کو چھوڑیں، کائناتیں اس کے گرد گھوم رہی ہیں، کیونکہ آپ یہاں پر تھے. پھر نہیں، آپ تو لیکن اگر ہم انفارمیشن کی سطح پہ اپڈیٹ ہوئے ہیں، لیکن چیزیں تو کام اپنے طریقے سے کر ہی رہی ہیں نا، ہاں وہی ہے نا. مطلب یہ ہے ایک لاجیکل وے میں، کہ ایک آرڈر میں. کہ اگر یہ زندگی کو جینے کے لیے لازم ہوتا کہ زمین سینٹر ہے یا سورج سینٹر ہے، تو ان جو 2 لوگ تھے وہ ایک زندہ ہوتا ایک نہ زندہ ہوتا. دونوں ہی دوروں میں شاندار زندگی کو جینے والے لوگ موجود تھے، اور دونوں ہی ادوار میں زندگی کو بے ہوشی کے ساتھ جینے والے موجود تھے. تو انفارمیشن سے آپ کے نالج امپروو ہوتے ہیں، سبجیکٹ اچھے ہوتے ہیں، پڑھنے پڑھانے میں آپ کو زیادہ آسانی رہتی ہے، چیزوں میں لاجیکل سیکوینس لگتا ہے. وہ اس میں کوئی شک نہیں، وہ ہونا چاہیے، وہ ہوتا رہا ہوتا رہے گا. آپ کے پاس ایک ٹول ہے جس کا کام ہی یہی ہے، چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہنا. لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں نا، آپ کی سائنس جو موسٹ لاجیکل علم ہے، جو موسٹ آبجیکٹیو آپ کی سبجیکٹ ہے، وہ سائنس ہے. سائنسدان اپنی تھیوریز اور متفق علیہ نظریات کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ یہ بیسٹ پاسبل سپوزیشنز ہیں.
क्योंकि उन्हें नहीं पता जिस तरीके से माइंड एक्सपैंड कर रहा है, चीज़ों को समझने की हमारी सलाहियत बढ़ रही है, कल को इन्हें किसी और तरीके से एक्सप्लेन करना पड़े। आप कहते हो जी लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है ना, ये बड़ा मुत्तफिक अलह फिनोमिना है। अगर आप गौर से देखें इस वक्त दुनिया को, या आइंस्टाइन के बाद की फिजिक्स को देखें, तो वो उस पर सवाल उठा रही है। दो अजसाम के दरमियान एक ग्रेविटेशनल पुल होता है, इस पर सवाल उठ रहा है। जब वो कौन सी है फिजिक्स की वो ब्रांच, क्वांटम फिजिक्स जो है, उसने इस पे सवाल उठाए हुए हैं। तो हो सकता है कि आपकी रीजनिंग इस जो आज तक आपका इल्म है इसके हवाले से अपडेट होती जाए और कुछ से कुछ होती रहे। ये पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग होगी नहीं। वजह उसकी ये नहीं है कि ये समझने के काबिल नहीं है, वजह उसकी ये है कि जिस टूल से हम समझने की कोशिश, मैं अपने दिमाग से समझने की कोशिश करूँगा, मेरा जो माइंड है, मेरे जो नर्व कनेक्शंस हैं वो अपने तरीके से कंडीशनड हैं, डेवलप्ड हुए हैं, वो एक सर्टन एनवायरनमेंट में रहे हैं, वो एक लैंग्वेज, एक डिक्शन समझते हैं, वो उसके साथ चीज़ों को इमोशनली एक्सप्लेन करना जानते हैं। मतलब पूरे का पूरा सुगरा खुबरा स्ट्रक्चर जो है वो मेरा अपना है। एक अमरीकी माइंड चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, वो एक और तरीके से समझने की कोशिश करता है। जो माइंड है वो इस पूरे कुल में एक जुज़ के तौर पर मौजूद है। कुल को ग्रैब करना है। ग्रैब कैसे करोगे? इस टूल के साथ। तो इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। आज जी सकते हो आप, जियो सारे का सारा। एक बच्चा माँ की कोख में है, जो हम हमेशा मिसाल देते हैं, वो माँ को पूरे का पूरा जी रहा है, चाहे समझता ना हो। आप इस नेचर माँ की कोख में हैं, इसको पूरे का पूरा जी सकते हैं। एक्सप्लेन करेंगे तो जैसे बच्चा एक्सप्लेन करेगा कि माँ एक गुब्बारा है क्योंकि वो गुब्बारा शेप में मौजूद है, माँ एक स्विमिंग पूल है क्योंकि वो पानी में वहाँ मौजूद है। आप भी नेचर को ऐसे कहते रह सकते हो, लेकिन आप इसकी कोख में हो। ये पूरी की पूरी एक्सप्लेन नहीं होगी, पूरी की पूरी जी जा सकती है। समझ सकता है बंदा जो होता है ना इंडिविजुअल लेवल पे। सीकर इसको जीता है, रिसर्चर इसको समझता है। आप इसे समझ सकते हो, बेहतरीन इल्म, बेहतरीन इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए एक अच्छा मफरूज़ा तैयार कर सकते हो। जीने की क्वालिटी हो सकता है आपकी गिर जाए। बहुत से इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बहुत से फिलोसोफर हैं, जब उनकी ज़िंदगी को देखते हैं उसमें रंग नज़र नहीं आते, उनमें खुशबुएं नज़र नहीं आती, उनका लहजा तल्ख है। वो लोगों को मुखातिब ऐसे करते हैं कि ये इन जानवरों की सतह पर जी रहे हैं, ये साले फलसफी क्यों नहीं है। दूसरी तरफ एक बंदा है जिसका हर लम्हा अलर्ट प्रेजेंस के साथ है, जो जिंदा है, लेकिन उसको आर्गुमेंटेशन के लिए बिठा दें, वो जानता कुछ नहीं है। आप क्या होना पसंद फरमाओगे? ऑब्वियसली जी रहा है। आप अच्छी जिंदगी जीना चाहोगे, जिंदगी की अच्छी समझ जरूरी है। कुछ लोग करते रहेंगे, हैं हमेशा करते रहेंगे, वो लोग भी आपको हेल्प ही कर जाते हैं, फिलोसफर हों या वो बेसिकली ऐसे लोग हैं जो मोमबत्ती की तरह खुद जल कर आपको रोशनी दे जाते हैं। आपको कुछ और आपके अंदर कुछ समझ आ गई, कुछ चीज़ों पे आप परेशान हो रहे थे, किसी फिलोसफर ने कोई नुक्ता आपको समझाया तो उन चीज़ों पर आप परेशान होना छोड़ गए। तो उन्होंने तो बेसिकली आपके लिए कुर्बानी दी है। अजीम लोग हैं, ग्रेट लोग हैं, जो रिसर्च करते हैं, जो ज़िंदगी को, नेचर की पूरी स्कीम को समझने की कोशिश करते हैं, शानदार लोग हैं। लेकिन ज़िंदगी का जो इंडिविजुअल तजर्बा है उससे लाजिम नहीं आता कि उस पर कोई फ़र्क पड़े। देखिए, आपके पास इल्म बढ़ा है, क्या ज़िंदगी की क्वालिटी आपकी बेहतर हुई है? ये आपको पता है कि वो बेहतर नहीं हुई। आउटवर्डली बेहतर हुई है। इवन आप अपने लाइफ स्पैन को देखें ना, तो आप जब बच्चे थे, 8-10 साल के लड़के थे, तो आपकी ज़िंदगी में कम मसाइल थे, कम पेचीदगियाँ थी, कम्प्लेक्सिटी नहीं थी, सादगी थी, खूबसूरती थी, हुस्न था, इन्वॉल्वमेंट थी लाइफ के साथ। उसके बाद आपके पास इंफॉर्मेशन ऐड हुई, आपने रंग रंग के इल्म इकट्ठे कर लिए, तो क्या आप कह सकते हो कि वो जो ज़िंदगी थी वो इससे कमतर थी? तजर्बे की सतह पर वो इससे बेटर थी। और दूसरी बात यह है कि जब भी ना
किसी भी शख्स को अगर गौर से देखें जो इल्म के रास्ते पर चला हो, रिसर्चर बना हो, जिसने ज़िंदगी को, ज़िंदगी की नेचर को, उलूम को गहराई से समझने की कोशिश की हो, उसके नताइज जो उसने निकाले हैं उनको गौर से पढ़ें तो वो ये कहता हुआ मिलता है कि जो मेरी ज़िंदगी के बारे में जो मेरा इल्म है वो बढ़ा है, नेचर के बारे में मेरा इल्म बढ़ा है, तो ये भी एहसास हुआ है कि इसके बारे में मेरी लाइल्मी भी फैलती जा रही है। जितना चीज़ों को आप गहराई से जानना शुरू करते हैं ना, उतना आपको ये एहसास भी सताने लगता है कि जो नहीं जाना गया है वो अब भी ज़्यादा है और वो उस क्वांटिटी से बढ़ता जाता है। एक बच्चा जो 7वीं 8वीं क्लास में बैठा है वो बायोलॉजी के बारे में समझता है कि जिंदा चीज़ों का इल्म इज़ बायोलॉजी, एक सादा सिंपल सी एक डेफिनेशन है। लेकिन एक बायोलॉजिस्ट है जो PhD कर चुका है, वो अब इस तारीफ पर मुतमईन नहीं हो सकता, वो अब गहराइयों में उतर चुका है, सेल्स और सेल्स में मौजूद ऑर्गेनेल से लेकर कितनी गहराई में, और जितना गहरा उतरता जा रहा है जानता जा रहा है कि ये जो सफ़र है ना इसका कोई इख्तिताम नहीं है। उसकी जो ना जाने वाली चीज़ें हैं वो फैलती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। तो नेचर पानी है, आप मछली हो, इतना ताल्लुक काफ़ी है मेरा ख्याल है जीने के लिए। तो समझा नहीं जा सकता इस माइंड से, समझा नहीं जा सकता। उसकी वजह यह है कि मतलब ये कोई रूहानी कोई गहरा रमज नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है कि इस पूरे स्ट्रक्चर ने मिलकर इसको बनाया है। वो कुल है, ये जुज़्व है। जुज़्व के पास कुल को परखने की सलाहियत हो नहीं सकती। उसकी क्या वजह? की वजह यह है कि उससे जन्म, माँ की कोख में है बच्चा, माँ की कोख में है बच्चा, और पूरी माँ कुछ और तरह की है। वो जो देख पा रहा है वो है एक पानी का गुब्बारा जिसके अंदर वो मौजूद है, उसी के मुताबिक डिफाइन करता रहेगा। जो कुछ हम जान चुके हैं ना उसी के मुताबिक परखते रहते हैं। सूरज से एनर्जी आ रही है, ज़मीन से फल पौधे आ रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास ऐड होती जा रही है, क्योंकि इतने सारे लोग रिसर्च कर रहे हैं ना, वो आपकी मालूमात में इजाफा कर रहे हैं, उसी की रोशनी में परखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज अगर पूछा जाए क्या आज आप नेचर को, ज़िंदगी को, खुदा को, रूह को ज़्यादा समझते हैं? कोई ये यकीन से कह नहीं सकता कि हाँ आज हम ज़्यादा समझते हैं। हालांकि चीज़ों के बारे में आपकी नॉलेज बहुत बड़ी है, फिनोमिना, मैटर की दुनिया के बारे में। और इस बात को यूं भी समझा जा सकता है कि माइंड डिटेक्ट करता है मैटर को, और मैटर थोड़ा है। जिंदगी का ताल्लुक है नॉन मैटर से, स्पेस से, वो स्पेस बहुत ज़्यादा है। तो आप मैटर की चीज़ों को जितना भी समझते रहेंगे, एक खुलिये के बारे में आप सारे का सारा कुछ जान लें, सपोज करते हैं साइंटिफिक सतह पर एक बायोलॉजिस्ट बैठता है और उसको पूरे का पूरा एक्सप्लोर कर लेता है, जो इन इटसेल्फ नामुमकिन है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि पूरे का पूरा उसने एक्सप्लोर कर लिया। तो अब वही साइंस हमें बता रही है कि एक खुलिये का 99.999 18 टाइम्स 9 जो है वो स्पेस है। सारा भी मैटर जान लिया गया तो आपने जाना क्या? 0.0000001%, 18 जीरो के बाद 1 लगा के आपने उसको जान लिया। तो अगर आपने सारा कुछ भी जान लिया तो कितना जाना? बहुत कम, 0.0। उसकी वजह यह है कि माइंड ऑपरेट ही नहीं करता स्पेस में, नथिंगनेस में, वॉइड में, वहाँ जहाँ जिंदगी है वहाँ पे वो ऑपरेट ही नहीं कर रहा। लेकिन आप एज जिंदगी ऑपरेट कर रहे हो, आप इस स्पेस को कुल्ली तौर पे यूटिलाइज कर रहे हो, यहाँ बैठे हो, इस स्पेस को घेर के आप खुद बन गए। नॉन मैटर को कैसे क्रिएट करता है? ये वही का सवाल है ना, उसी अननोन का सवाल है, उसी बेतहाशा स्पेस का सवाल है जिसमें बहुत थोड़ी मिकदार में मैटर के जर्रे तैर रहे हैं। कैसे क्रिएट कर सकता है, कौन कैसे कहे? ये अगर बंदा इंडिविजुअल लेवल पे एक्सप्लोर करना चाहे तो कैसे करे?
बैठ जाएं मेडिटेशन में, कोशिश करें ये सवाल रख के अपने सामने, लेकिन यकीन करें तब भी आपके पास जो मालूमात आएंगी ना, वो मालूमात आपकी जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है ना, उसको मैच करेंगी। वो जिसको समझना चाह रहे हैं आप ना, उसकी नेचर को एक्सप्लेन नहीं करेगी। समझने का ताल्लुक मुझसे है ना, इंफॉर्मेशन मेरे पास है, उस इंफॉर्मेशन में जमा तफरीक कर रहा शख्स मैं हूं और नेचर कुल है। मैं चीनी जबान नहीं जानता और चीनी जबान में बहुत गहरा इल्म मेरे सामने लिखा पड़ा हो तो वो मेरे लिए यूजलेस है, क्योंकि मैं देखूंगा तो अपने एंगल से, समझूंगा तो उसी जबान में जिस जबान को मैं जानता हूं, उसी दिमाग से जो मैंने डेवलप किया है। वो कितना ट्रेंड है, कितना सुलझा हुआ है, कितना फोकस्ड है, उसका फर्क पड़ेगा। लेकिन फिर भी वो जितना भी एक्सपैंड कर जाए, आपकी लिमिटेशन है। हाँ, ये जैसे साइंसदान भी कह रहे हैं और साइंस फिक्शन भी जैसे बता रही है हमें कि अगर ये माइंड हम 100% इस्तेमाल करने पर आ जाएं तो हो सकता है शायद हम कोई बेटर मफरूज़े निकाल पाएं। अब जो मैक्सिमम यूज़ हुआ है इस्तेमाल दिमाग, जो फैक्ट्स एंड फिगर साइंस हमें बता रही है, वो ये है कि 12%, 13%, 7%, ये हमारे पास फिगर आ रहे हैं। 100% पे मेरा ख्याल है, एक और सपोजिशन, आप ये फ़र्क तकसीम और फ़र्क जो है ना, वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि ये मैं हूं और ये दीवार है। वो उसकी जो एक्सपेंशन है, ये यूं समझें कि उस कतरे की बाउंड्री टूट गई अब वो कुल और वो पूरे समंदर का हिस्सा बन गया। अब वो हर जगह हर वक्त मौजूद है। तो आप जा रहे हैं अगर 100% अपने दिमाग को खोलने की तरफ, तो हो सकता है कि नेचर के हवाले से आपकी समझ कुछ और गहरी हो जाए। लेकिन ज़िंदगी को गुजारना है, अगर आपने अच्छी ज़िंदगी को जीना है, तो उसके लिए उस इंफॉर्मेशन की, नेचर के काम करने के मैकेनिज़्म को समझने की ज़रूरत नहीं, जस्ट जीने की ज़रूरत है। माँ के कोख में मौजूद बच्चे को कतई ज़रूरत नहीं है पूरी माँ के सिस्टम को परखने समझने की, वो जी रहा है। आपको इसकी वर्थ नहीं मालूम, इस स्पेस की वर्थ नहीं मालूम, इसकी कदर नहीं मालूम, इसलिए बाहर घूम रहे हैं। मछली को इसकी वैल्यू, पानी की वैल्यू का पता कब चलता है? जब थोड़ी देर के लिए उसे पानी से निकाल के हवा में, फिजा में लटकाएं और फिर वो जो उस पर मौत का मंजर तारी होता है ना, फिर उसे पता लगता है कि वो किस चीज़ में थी, वो क्या चीज़ थी जो उसके लिए इतनी गैर ज़रूरी रोज़मर्रा रूटीन की आम सी चीज़ थी। तो वो पूरी ज़िंदगी का जो बहाव है ना, वो आपको हर वक्त टच कर रहा है। ये स्पेस आपको हर वक्त टच कर रही है। इसकी वर्थ का आपको अंदाज़ा हो जब आपको इस स्पेस से निकाल के बाहर खड़ा कर दिया जाए। आप चांद गाड़ी के ज़रिए चांद पर पहुँचे और चांद पर पहुँचते साथ ही किसी तरीके से वो आपका जो सूट है वो एक्सपायर हो गया, वो लीकेज करने लगा। तो अब आपको वर्थ पता लगेगा ना कि ये जो स्पेस गैर मामूली सी चीज़ है, मामूली सी चीज़ है, वर्थलेस है, ये कितनी, इसको जीने के लिए आपके पास मौका हर वक्त है। यानी कि मैं इसको अगर कहूँ ना सूफियों की ज़बान में, खुद हर लम्हे खुदा को जी सकता है। अब मैं खुदा को इस्तेमाल कर रहा हूँ इस स्पेस, इस कुल के सेंस में, वो हर वक्त इससे कनेक्टेड है। सूफी और नॉन सूफी में फ़र्क क्या होगा? सिर्फ इतना कि वो जानता है कि ये कनेक्शन मौजूद है और वो अनकॉन्शियसली उसको जिए जा रहा है। तो नेचर की पूरी स्कीम को समझने से ज़्यादा इसको जीने में इंटरेस्ट होना चाहिए। और जीने का ऑप्शन आपके पास हर वक्त है, मौत से एक लम्हा पहले तक, डिप्रेशन की इंतहाओं में। कभी कभी हो सकता है आपको ऐसा तजर्बा हुआ हो कि बहुत डिप्रेशन, शदीद डिप्रेशन में है, सारा दिन बीता है आपका और सर दुख रहा है, समझ कुछ नहीं आ रहा, और अचानक आप अंदर से ही ना फैसला करते हैं, यार बस हो गया, हम तो मर ही जाएंगे एक दिन, क्या फ़र्क पड़ता है? तो नोट करते हैं अचानक से ही जैसे सारा कुछ ना डिफ्यूज हो गया, आप रिलैक्स्ड हो गए। जबकि एक पल पहले आपको ऐसा लग रहा था कि बस ज़िंदगी ख़त्म हो गई, इन मसाइल से मैं नहीं निकल सकता। कभी कभी आप किसी की डेथ पर बैठे रो रहे हों
कोई करीबी मरा पड़ा है और आप रो रहे हो, अचानक ख्याल जाए इस तरफ ना कि कौन रो रहा है, तो आप अपने आप को रोता हुआ देखते हो, और जो देख रहा है उसे कोई परवाह नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसे, वो इसे एज एक्ट देख रहा है। बहरहाल ये ऑप्शन आपके पास हर वक्त मौजूद है कि जिस भी वक्त चाहें इस नेचर की पूरी स्कीम को जी लें। समझने का एक रास्ता है, एक तरीका है, वो सफ़र बुरा नहीं है, वो मज़ेदार है, उसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि आप बेदार हो जाएं, इनलाइटन हो जाएं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो उसी तरह की ले रहे हैं। माशरा आपको एक सर्टन किस्म की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ज़्यादातर दुख भरी है, ज़्यादातर वो रोबोट बनाने के चक्कर में रहता है, आपको एक सर्टन किस्म का पुर्जा बनाना चाहता है जो इस पूरी फैक्ट्री में फिट आ जाए। ये आपकी कंडीशनिंग करता है। माँ बाप बताते हैं बेटा तूने पढ़ना है, हमारे दुख दर्द दूर करने हैं। पढ़ने की अहमियत नहीं है, पढ़ना मीन है, जरिया है कहीं किसी स्टेज तक पहुंचाने का। नौकरी जरिया है किसी प्रमोशन तक पहुंचाने का। आप किसी भी चीज़ को एक्चुअली जी ही नहीं रहे, जरिया बना रहे हैं। आप जी नहीं रहे, जीने की तैयारी में मशगूल हैं। ये है जीने की तैयारी। जैसे ही जीना शुरू करते हैं ना, तो ये तैयारी वाला जो बोझ है ना वो हट जाता है, वो प्रेशर जो होता है ना वो हट जाता है। तो नेचर की स्कीम को समझने की कोशिश करने की बजाय जीने पर तवज्जो देनी चाहिए। जो चंद लोग रिसर्च और इस फील्ड में आगे हैं, इंटेलेक्चुअली इस चीज़ को समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, उनका एक रोल है सोसाइटी में, इंसानी ज़िंदगी के लिए, हमारे एवोल्यूशन में उनका रोल है। वो रोल बहुत पॉजिटिव है, वो अच्छा है। तो कुछ लोग ये काम करते रहेंगे। अब आपको जिन दोस्त ने ये सवाल किया है उन्हें अपने आप से पूछना है कि मैं नेचर की इस पूरी स्कीम को समझना चाहता हूँ, ए इसलिए कि अच्छा जी सकूँ इसको, बी ये इसको अच्छा समझ और समझा सकूँ। अगर तो अच्छा जीना चाहते हैं तो नेचर की स्कीम को समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसे समझना और समझाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत सारी किताबें दस्तयाब हैं, इल्म की बहुत सारी ब्रांचेस दस्तयाब हैं। फिर फोकस के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे पैशन के साथ इसकी तरफ जाएं। ये कैरियर बन सकता है आपका। अगर इसमें आप आगे बढ़ते हैं तो जैसे कोई ना कोई कैरियर आप एडॉप्ट करेंगे तो इसको बना सकते हो। जिंदगी जीने में आपकी राह में कोई रुकावट नहीं है। ये रुकावट नहीं है कि आपके पास इंफॉर्मेशन कम है। बहुत से लोग हैं बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं बहुत कम इंफॉर्मेशन के साथ। एक्चुअल हकीकत आज की दुनिया की तो ये है कि आज की दुनिया में बहुत कम इंफॉर्मेशन वाले ही बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। सो इंफॉर्मेशन या चीज़ों को समझ लेना मेंटल सतह पर माइंड एक्टिविटी के तरफ, माइंड मुर्दा एक्टिविटी है, इस बात को जहन में रखें। माजी से हासिल किया गया सारा नॉलेज जिसको आपने स्टोर किया, लेबल लगाए और सजा के रख दिया है ना यहाँ पर, वो उससे खिलवाड़ का, उससे खेल कूद का नाम है। जिंदगी का मैदान तो ये है। आपका खुलिया इस मैदान में महव है, इस मैदान से लेन देन चल रहा है। आपका खुलिया इससे एनर्जी ले रहा है, इसको मतलूबा चीज़ें वापस कर रहा है। दरख्त को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, मैं एक्सहेल करके उसे पहुंचा रहा हूँ। मुझे ऑक्सीजन चाहिए, वो एक्सहेल करके मुझे दे रहा है। ये खेल तो, इस खेल का मैदान तो बहुत बड़ा है, वो महदूद सा मैदान है। कुछ लोग उसमें काम करते रहें, ये ज़रूरी है ताकि आपका जो एक्यूमुलेटेड नॉलेज है वो तरतीब में आता जाए, अगली नस्लों तक मुंतकिल होता जाए। क्योंकि दूसरी तरफ से सोसाइटी तो अपनी कंडीशनिंग करती ही रहेगी। तो सोसाइटी से मावरा उठने का, ईगो से मावरा उठने का जो आपके पास टूल है, एज जनरल टूल फॉर मटीरियल थिंग्स, तो आपके पास ये एक्यूमुलेटेड इल्म मुनज़्ज़म मरबूत फॉर्म में होना चाहिए। आपको सवाल खुद से सिर्फ ये करना है कि नेचर की इस पूरी स्कीम को आप क्यों समझना चाहते हैं। नेचर से अच्छा रिलेशन डेवलप करने के लिए, तो उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन की रिसर्च की कोई ज़रूरत नहीं है। नेचर को समझने और समझाने के लिए एज अ रिसर्चर, एज अ थिंकर, एज अ मुफक्कर, तो आपके पास ये रास्ता खुला हुआ है। लेकिन फिर भी उस सूरत में भी आपको उस बैकग्राउंड से जुड़ना ज़रूरी है। अच्छे रिसर्चर बनने के लिए, अच्छे एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए, अच्छा फैक्ट्री ओनर बनने के लिए, अच्छा मजदूर बनने के लिए आपको राब्ता रखना पड़ेगा नेचर की पूरी स्कीम से, ना कि उन इंफॉर्मेशन से जो नेचर के हवाले से आपके पास दस्तयाब है।